channel. I hope you are fine. As you know, in the previous video, I am going to discuss each and every bachelor degree which is opted after class 12th. If you pass the exam, then you have to do just a bachelor degree to do graduation. Okay, to discuss each and every topic related to BA in sociology. Okay, here I will be discussing about eligibility, fees, what are the entrance tests to get the good college, top colleges in India, college comparison of top colleges, about fees and many more, future scopes, and what after BA in sociology. Okay, let's discuss one by one each and every topic. Okay, first our topic is eligibility. Okay, this is eligibility. Course level, this is undergraduate. Undergraduate है. Full form of BA in sociology is Bachelor of Sociology. Okay, duration is 3 years and the examination type is semester or annual exam. It totally depended upon college. Okay, it totally depend upon the college. Some of the college taken by semester wise and some of the college take it as an annual exam. Okay, what is it? Eligibility 10+2 examination from a recognized board. Is there any board? ICSE board, Bihar board, state board, and many more, CBSE, etc. with a minimum aggregate of 50%. आपका 50% होना चाहिए. Okay, let's discuss fees. This is the most important topic. Okay, the average fees incurred is 3,000 to 3 lakh per annum. This is the average fee of the college is between 3,000 to 3 lakh per annum. It totally depends upon the college where you are studying. Okay, and the average fees for top institutes up to average fees of top institute, when you clear the interest rate, you will get the college, and the college fees up to 2 to 3 lakh per annum. Per annum is per year. Okay, it will be a semester wise or annual exam. It totally depend upon the college across India. I hope clear हो गया होगा. Entrance test. What is the entrance test to get the top premium institute of the India? Okay, the first test is CUCET and the second is DU. As you know, Delhi University, Christ University, Labri Professional University. These are the college that take entrance test to get admission in. Okay, these are the top 3 entrance tests. When you clear this entrance test, you will get the premium institute, or you can simply say the top colleges of India. Okay, now what are the top colleges in India? We have take admission. Okay, first one is Loyola College, which is situated in Chennai. This is the most premium institute. Second is St. Xavier College, Mumbai, as you already heard. Christ University, Bangalore. Kristu Jayanti College, Bangalore. Nizam College, Hyderabad. Lovely Professional University, which is in Punjab. Okay, etc. These are the top colleges in India. Okay, I hope आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं. बीए सोशियोलॉजी के कॉलेज कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, लोकेशन, पैरामीटर्स. आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को मैंने डिफरेंस में लिया है कंपैरिजन में, लोयोला कॉलेज को लिया है, सेंट ज़ेवियर कॉलेज जो मुंबई में है. ये आपका टॉप कॉलेज इन इंडिया. चलिए कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, लोकेशन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बैंगलोर, चेन्नई है लोयोला कॉलेज, मुंबई है सेंट ज़ेवियर कॉलेज. ओके, ओवरव्यू. इट इज वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर यूनिवर्सिटी इन इंडिया. बहुत पुराना है. It is a private university, private Christ University, and is popular for course like BA, MA, MSc and MBA. ठीक है, यह एक पॉपुलर कोर्स है जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है. ठीक है, सेकंड लोयोला कॉलेज विच इज सिचुएटेड इन चेन्नई. इट इज एफिलिएटेड अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. ये एफिलिएट है मद्रास की यूनिवर्सिटी से. इट ऑफर्स ए नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स. ये आपको ऑफर देता है जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, एंड द सेंट ज़ेवियर कॉलेज विच इज सिचुएटेड इन मुंबई. It is one of the finest private university of the country. Finest मतलब क्या बोलते हैं, प्रीमियम. ठीक है, कंट्री का ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कोर्स टू द स्टूडेंट. ओके, इट इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. ओके, द वीक ऑफ रैंकिंग. रैंकिंग में बताता हूँ आपको इस कॉलेज का. आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है 12, आपका लोयोला कॉलेज का रैंकिंग है 4, आपका सेंट ज़ेवियर कॉलेज का रैंकिंग है 6. एवरेज फीस के बारे में बात करते हैं. एवरेज फीस जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज का है 1.3 लाख पर एनम. ठीक है, आपका वो सेमेस्टर वाइज ले या आपका एनुअल एग्जाम ले, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है. ओके, तो लोयोला कॉलेज का
एवरेज फीस है 10,140, ठीक है, INR मीन्स रुपीज। और आपका सर जेवियर कॉलेज का मिनिमम कितना जा रहा है 16,569। एवरेज सैलरी के बारे में बात करते हैं। जब आप कॉलेज कर लीजिएगा, मान लीजिए आपको प्लेसमेंट लग गया, तो आपको कितना एवरेज सैलरी मिल सकता है? आपका 6.85 तक पर साल का आपका एवरेज सैलरी लग सकता है। लोयला कॉलेज से आपका 3.5 लाख पर एनम का लग सकता है। सर जेवियर कॉलेज 5.5 लाख पर एनम का लग सकता है। जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनी जिसको आप प्लेसमेंट कहते हैं, तो क्रैश यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्लेसमेंट रिक्रूटिंग कंपनीज आते हैं? डेलॉइट, KPMG, ICICI बैंक, अर्नस्ट एंड यंग, एसेंच्योर, ये आपका टॉप रिक्रूटिंग कंपनी है। ओके, लोयला कॉलेज में आप कहते हैं जेन मेडिक, IBM, स्ट्रेटेजम सॉल्यूशन, Amazon, ये आपका लोयला कॉलेज का टॉप यूनिवर्सिटी। सेंट जेवियर कॉलेज सेंट जेवियर कॉलेज में अर्नस्ट एंड यंग, एक्सिस बैंक, Amazon, इन्फोसिस, फ्यूचर फर्स्ट, ये आपका टॉप कॉलेज है, टॉप प्लेसमेंट रिक्रूटिंग कंपनी से। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, वर्किंग पोजीशन। मतलब ये फ्यूचर स्कोप से मतलब जॉब आप ले सकते हैं जब आप ये डिग्री को क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब पास कर जाते हैं, ठीक है, जब आपको डिग्री मिल जाता है। तो जॉब प्रोफाइल में कौन कौन सा? सोशल वर्कर, आप सोशल वर्कर का जॉब ले सकते हैं। सोशल वर्कर का क्या काम है? सोशल वर्कर लुक्स आफ्टर द वेरियस नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर फैमिली, मतलब फैमिली के बारे में देखता है, और जो वेरियस नीड जो पीपल को होता है, दे वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एम टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स। इसका एनुअल एवरेज सैलरी कितना है? 2.5 लाख पर एनम टू 7.24 लाख पर एनम। इट टोटली डिपेंडेड अपॉन द एक्सपीरियंस दैट द पर्सन हैव। ओके, काउंसलर बन सकते हैं। 1 सेकेंड, काउंसलर का क्या काम है? काउंसलर इन्वेट्स द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल को, मतलब क्या बोलते हैं, काउंसलर मान लीजिए कोई कॉलेज में आते हैं, तो वहाँ पे जो आदमी बैठा रहता है, कौन सा जो पर्सन बैठा रहता है, वो आपको कॉलेज के बारे में बताता है। मतलब एक तरह से काउंसलर होता है, कौन सा कॉलेज के लिए बेस्ट है, क्या यहाँ पे बेस्ट है, वो आपको डिस्कशन करता है, वो आप बन सकते हैं काउंसलर। इसका एनुअल सैलरी है 2.94 लाख टू 7 लाख पर एनम। जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिस्ट का काम क्या है? लेटर टू द एडिटर, मतलब जो एडिटर होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदूज, ये आपका। और इसका एवरेज एनुअल सैलरी 3.31 लाख टू 8.62 लाख पर एनम, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जिसका एनुअल एवरेज सैलरी है 1 टू 1.2 लाख पर एनम। कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कंटेंट राइटर क्या प्रेजेंट करता है? Content writer is a person who represent his or her content in such a way that it gets the maximum amount of traffic। मतलब जो content writer, मतलब ब्लॉगिंग करते हैं, तो ब्लॉगिंग नॉट व्लॉगिंग। ओके, ये आपका अंतर है, डिफरेंस है। वो आप कर सकते हो कंटेंट राइटर बनकर, जिसका एनुअल सैलरी है 2.43 लाख टू 4.82 लाख पर एनम। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है, जिसका एवरेज एनुअल सैलरी आपका 2.3 लाख टू 4.79 लाख पर एनम है, ठीक है। क्या क्या आप कर सकते हैं? आफ्टर गेटिंग द बैचलर डिग्री, after 3 years you may either take job, or you can pursue, after BA in sociology you can do just masters in sociology, PhD कर सकते हैं आप, मास्टर्स इन सोशोलॉजी कर सकते हैं। ये आपका, आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ के और अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपका आपका ये आप कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या फ्यूचर स्कोप है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस मास्टर डिग्री विच इज मास्टर PhD MS, ठीक है। तो क्या क्या फ्यूचर स्कोप आ जाता है इसके बाद से? आप कॉर्पोरेट रिसर्च में जा सकते हैं, HR बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, यूथ सर्विस, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर में आप जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और नए बैचलर डिग्री के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप नए चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। जिससे आपका 12th का जैसे रिजल्ट आता है, तो आपको क्या लेना है वो मैं आपको इस चैनल पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।